हाय फ्रेंड्स, ऑन कंटिन्यूएशंस ऑफ लास्ट सेशन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के प्रीवियस ईयर्स बोर्ड में पूछे हुए कुछ न्यूमेरिकल के बारे में. इन लास्ट और प्रीवियस सेशन वी ऑलरेडी कंप्लीटेड 1 to 8 न्यूमेरिकल. सो दिस इज सेकंड सेशन. we'll move on to this numerical number 9. so numerical number 9 textbook solved example है. 9th, the calculate the EMF of the cell in which the following reactions takes place. Reaction is Ni plus 2Ag gives Ni plus 2 plus 2Ag. Oxidation पे क्या होगा? Ni gives Ni plus 2 electron. What is there in reduction? Ag plus 2 electron gives 2Ag solid. So basically during this reaction N is equal to 2 हो जाएगा. E0 सेल की वैल्यू दी हुई है, that is 1.05. सिंपल आपको EMF ढूंढना है. So first of all कौन सा फॉर्मूला लगेगा? गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट करो. E0 सेल दिया हुआ है. ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो N is equal to 2. So by using Nernst equation, E cell is equal to E0 cell minus 0.059 log of anode upon cathode, product divided by reactant or oxidation divided by reduction. So let's start with the numerical part. न्यूमेरिकल के अंदर सारी की सारी गिवन डेट वैल्यूज दी हुई है. गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए और रखिए. E cell, E0 cell is ready. 0.059 by 2 during this reaction 2 electron transfer, Ni plus 2 Ag plus 2 square. Why square? Just because coefficient goes to the power. So basically इसका concentration है 0.160, इसका concentration है 0.002 square. दोनों का simplification करोगे you get your answer. log देखिए, simplify कीजिए, multiplication कीजिए and finally you get answer. E cell is equal to 0.91 volt. So बहुत ही easy textbook का solved example है. अच्छे से practice कर लीजिएगा. Numerical number 10. The molar conductivity of 1.5 molar solution of an electrolyte is found to be 138.9 centimeter square mole inverse. Calculate the conductivity of a solution. बहुत ही सिंपल है. सिंपल कंडक्टिविटी ढूंढनी है. आपको 1.5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी दे दिया हुआ है एंड द मोलर कंडक्टिविटी इज ऑल्सो गिवन. So numerical number 10, lambda m is given, that is 138.9 centimeter square mole inverse. Concentration is given, that is 1.5. Kappa ढूंढना है. What is our formula? Lambda m is equal to kappa into 1000 by C. Lambda m पता है, C पता है 1000. Kappa को इक्वेशन का फॉर्म बना लो. Put all this value and finally you get answer. Kappa is equal to 0.208 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. वंस अगेन मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस सेशन में भी कि ऐसे न्यूमेरिकल के अंदर यूनिट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिट नहीं लिखोगे तो पूरा एक मार्क कट जाएगा. न्यूमेरिकल नंबर 11, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ Kc एंड डेल्टा G0 फॉर द रिएक्शन. Ni plus 2Ag plus gives Ni plus 2 plus 2Ag. E0 cell of this reaction is 1.05 volt. सबसे पहले what is there in oxidation? Ni gives Ni plus 2 electron oxidation. 2Ag plus 2 electron gives 2Ag. That is on reduction part. So basically during this reaction N is equal to 2. Number of electron कितने हो जाएंगे? 2. अब E0 cell की वैल्यू तो दे दी है, that is 1.05. What you have to find out? Kc and delta G0. So let's start with the numerical number 11. Equation is given. N is equal to 2 है. N is equal to 2 के बाद सेकेंड वैल्यू आपको ढूंढनी है डेल्टा G0 एंड डेल्टा G0 के बाद आपको ढूंढना है Kcb. So डेल्टा G0 is equal to minus NF E0 cell. N is 2, 96,500 multiply by 1.05. You get your answer. That is delta G0. Now next value you have to find out the Kc. By using this formula delta G0 is equal to minus 2.303 है. So यहाँ पे एक डेसिमल आएगा. 2.303 RT log Kc. मेक ए फॉर्म ऑफ log Kc. बाकी सारी वैल्यू आपको पता है. सारी वैल्यू एक साइड ले लीजिए. log Kc मिलेगा. Then take anti log. You can find out the Kc. So log Kc is equal to delta G0 upon minus 2.303 RT. Put all this value, simplify कीजिए.
you get log Kc is equal to 35.516. एंटी लॉग देखिए and you get your answer Kc. 12th, calculate the potential for the half cell containing 0.10 molar K2Cr2O7, 0.20 molar Cr plus 3 and 1 into 10 to the power minus 4 molar H plus aqueous solution. The half reaction cell पूरा equation दे दिया हुआ है, did not have to balance this. E0 cell भी दे दिया हुआ and standard electrode potential is E0 1.33 volt. Fine. So let's start the potential, that is E cell आपको ढूंढना है, E cell ढूंढते हैं. So 12th equation क्या है? Equation है Cr2O7 minus 2 plus 14H plus 6 electron plus 2 Cr plus 3 plus 7H2O. This is our equation. नर्स इक्वेशन क्या है? E cell is equal to E0 cell minus 0.059 by n log of Cr plus 3. So बेसिकली क्या है, अब रिएक्शन को थोड़ा सा फोकस कीजिए. व्हाट इज देयर इन रिएक्शन? ये आपका रिएक्टेंट है 14H plus 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये n is equal to 6 हो जाएगा. Cr plus 3, तो प्रोडक्ट गोज टू ऑन न्यूमरेटर, तो Cr plus 3 का स्क्वायर आ गया जस्ट बिकॉज कोएफिशिएंट 2 है. डिनोमिनेटर में क्या है? H प्लस भी है एंड Cr2O7 भी है, तो Cr2O7 का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, तो दैट्स व्हाई इट्स 1. बट H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 14 कोएफिशिएंट, तो रेज टू द 14. अब लोग 10 टू द पावर 14 करना भूल जाते हैं, सिंपल H प्लस रेज टू 1 करके ही छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, यू गेट 0 मार्क्स. सो ध्यान रखिए Cr प्लस 3 का कोएफिशिएंट 2 है, तो पावर 2, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 14 है. कोएफिशिएंट डालना मत भूलिएगा. दिस इज रेडीमेड. ये आपको 6 मिल गया ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. इस सभी की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी है 0.2, 0.1, 10 टू द पावर माइनस 4 रेज टू 14. अब ये बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 4 रेज टू 14 मीन्स 56, तो यही हो गया, मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये ऊपर चला जाएगा, 55 हो जाएगा. सो 1.33 माइनस दिस log 2 मल्टीप्लाई बाय 2 10 टू द पावर 15, तो log 2 प्लस 55. वाई? बिकॉज 10 टू द पावर 55 का log होगा 55, log 10 बेस 10, log 10 बेस 10 1 हो जाएगा. ये सभी को सिंप्लीफाई कीजिए, फाइनली योर आंसर इज E cell इज इक्वल टू 0.783 वोल्ट. फाइन. थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सारे न्यूमेरिकल से, अच्छे से 2 बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यू गेट योर आंसर. लेट्स स्टार्ट विद द 13 वन. फॉर सेल दिया हुआ है Zn प्लस 2 सॉल्ट विद Cu प्लस 2 टू Cu. दोनों के कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं 2 मोल एंड 0.5. क्या करना है? सबसे पहले राइट ईच हाफ रिएक्शन एंड सेकेंड कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, मीन्स E सेल ढूंढना है. E0 सेल की वैल्यू रेडी है, सिंप्लीफाई कीजिए, यू गेट योर आंसर. सो लेट्स स्टार्ट विद द 13th न्यूमेरिकल. सबसे पहले पूछा है इक्वेशन लिखिए, तो यहाँ पे आगे आप लिख लीजिएगा एनोड और ऑक्सीडेशन, Zn gives Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. इसके आगे लिख लीजिएगा रिडक्शन और कैथोड, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives Cu. ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लीजिएगा n इज इक्वल टू 2. तो ये आपका फर्स्ट 1 मार्क क्लियर. सेकेंड E सेल ढूंढना है, तो इसके लिए E0 सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस एनोड, 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76. ये वैसे भी डेनियल सेल है, डेनियल सेल 1.10 वोल्ट, वो आपको पता ही होना चाहिए, उसका E0 सेल यही आएगा. नाउ बाय अप्लाइंग नर्स इक्वेशन, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाय n log Zn प्लस 2 डिवाइड बाय Cu प्लस 2. n क्या आ जाएगी ड्यूरिंग दिस रिएक्शन? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. सो लेट्स स्टार्ट, पुट ऑल दिस वैल्यू, यू गेट योर आंसर. E cell 1.1 minus 0.059 by 2 log 2 of 0.5. सिंप्लीफाई कीजिएगा, लॉग देख लीजिए, मल्टीप्लीकेशन करो, फाइनल आंसर आ जाएगा 1.09 वोल्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट वेरी सिंपल, वेरी इजी न्यूमेरिकल नंबर 13. लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल नंबर 14. कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन. रिएक्शन कौन सा है? Zn gives Zn plus 2 electron, that is oxidation.
रिडक्शन पे क्या हो रहा है, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड। E0 सेल ढूंढना है, E0 सेल इज नथिंग बट E कैथोड माइनस E एनोड, दोनों की वैल्यू दी हुई है, सिंप्लीफाई करोगे यू गेट योर आंसर। To find out Kc equilibrium constant, what is our formula? E0 cell is equal to 0.059 by n log Kc. Make a form of log Kc. E0 cell multiplied by n divided by 0.059. E0 cell क्या है? Once again a Daniell cell, 0.34 and minus of minus 0.76. You get 1.10. Simplify करो, वैल्यू रखो, Kc की वैल्यू आ जाएगी, log Kc की आ जाएगी 37.288. एंटीलॉग ले लीजिए, Kc इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 37.288. योर फाइनल आंसर Kc इज इक्वल टू 1.941 इंटू 10 to the power plus 37. So this is all about your numerical number 14. न्यूमेरिकल नंबर 15 टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल, मैंने बोला भी था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा हुआ है। सो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम of 0.05 molar NaOH solution of diameter is 1 centimeter, length is 50 centimeter, is 5.55 into 10 to the power 3 ohm. Calculate its 3 चीज ढूंढनी है, कौन कौन सी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना होगा, रो, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, क्योंकि आपको डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है। तो लेट्स स्टार्ट, गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए। लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल 1। गिवन डेटा सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कीजिए, डी डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। लेंथ एल दी हुई है 50 सेंटीमीटर, कापा 5.55 इंटू 10 to the power 3 ohm, सी कॉन्सेंट्रेशन 0.05. दिस आर द थिंग्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो सबसे पहले R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाय एल। सो रो इज इक्वल टू 5.55 इंटू 10 to the power 3, 3.14 इंटू 0.5 स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या होगी, पाई आर स्क्वायर। अगर आप चाहो तो ए की वैल्यू अलग से सेपरेटली ढूंढ सकते हो सबसे पहले, एंड देन यू पुट इट इनटू दिस फॉर्मूला, या फिर डायरेक्टली ये फॉर्मूला में ही डाल दीजिए। आपको सबसे पहले क्या मिल जाएगा, रो। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी इज नथिंग बट 1 अपॉन रो। अब देखिए ऊपर कंडक्टिविटी कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, रो की वैल्यू आपको ढूंढनी है, दी हुई है, कहां से, यहां से। अब ये गलत हो गई तो वही वैल्यू उठा के यहां पे रखनी है। तो कैलकुलेशंस पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा, जब आपको ऐसे 2 या 3 चीज ढूंढनी है, कंडक्टिविटी ढूंढनी है, ये ढूंढना है, वो ढूंढना है, तो सभी केस के अंदर क्या होगा, ऊपर की ही वैल्यू नीचे रखनी है। सो दिस इज 1 अपॉन अबाउट 87.135. You can find out conductivity is equal to 0.001148 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट, मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय सी। अब लैम्डा एम की वैल्यू ढूंढनी है, कापा अभी हमने ढूंढा है, दैट इज 0.01148 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय सी 0.05। सिंप्लीफाई करोगे यू गेट योर आंसर 229.6 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। Let's start with numerical number 16. In a button cell which is widely used into these watches, the following reactions takes place. Reaction कौन सा है? Zn plus Ag2O plus H2O gives Zn plus 2 plus 2Ag plus 2OH minus. आपको क्या ढूंढना है? E0 cell and delta G0. So given E0 cell is equal to Ag plus plus Ag and E0 Zn plus 2 to Zn. सिंप्लीफाई कीजिए, सबसे पहले E0 सेल ढूंढिए एंड वही वैल्यू उठा के डेल्टा G के फॉर्मूला में रख दीजिए, यू गेट योर आंसर। सो न्यूमेरिकल नंबर 16, Zn gives Zn plus 2 plus 2 electron on anode, cathode 2Ag plus plus 2 electron gives Kg. So basically E0 cell is equal to E cathode minus E anode, दोनों के सेल पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, सम कर लीजिए, यू गेट 1.56। नेक्स्ट, डेल्टा G0 ढूंढना है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। E0 सेल की वैल्यू अभी ऊपर ढूंढी, F 96,500 ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मल्टीप्लाई कीजिए, यू गेट योर आंसर।
Let's start with numerical number 17. The cell in which the following reaction occur, 2Fe plus 3 gives 2Fe plus 2. Means during this reaction only one electron transfer. Fe plus 3 से Fe plus 2 हो रहा है. And 2I minus gives I2. E0 cell for this reaction is 0.236 volt at 298 Kelvin. Calculate the standard Gibbs energy and equilibrium constant. See, numerical almost repeat हो रहे हैं. Equation change हो गया, but delta G ढूंढना है, Kc ढूंढना है. सबसे पहले 17 के इक्वेशन लिख लीजिए. 2Fe plus 3 plus 2 electron gives 2Fe plus 2. 2I minus gives I2 plus 2 electron. So basically यहाँ से आपको पता चल गया during this reaction 2 electron transfer N is equal to 2. Now delta G0 is equal to minus NFE0 cell minus 2 multiplied by 96,500 multiplied by 0.236. You get delta G0 is equal to minus 45.55 kilojoule per mole. नेक्स्ट डेल्टा जी ढूंढ लिया हमने. अब ढूंढनी है Kc की वैल्यू. तो उसका फॉर्मूला है डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc. Log Kc on one side, delta G0 remaining term on other side. Simplify कीजिए, put all this value and you get your answer. Kc is equal to antilog of 7.983. तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 9.616 into 10 to the power 7. So this is all about your numerical number 17. Numerical number 18. How many coulombs are required to reduce 1 mole of Cr2O7 minus 2 to Cr plus 3? First question. Second, the conductivity of 0.001 molar acetic acid is 4 into 10 to the power minus 5 Siemens per meter. Calculate the dissociation constant of acetic acid if lambda 0 m of acetic acid is 390 Siemens centimeter square mole inverse. So 18 का फॉर्मूला इक्वेशन सबसे पहले लिख लीजिए. Cr2O7 minus 2 plus 6 electron plus 14H plus gives 2 Cr plus 3 plus 7H2O. अब देखिए ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 6. तो कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा? 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी. So 1 mole Cr2O7 minus 2 required 6 Faraday. So 6 multiplied by 96,500 means this many coulombs you have. That is your first question. Next our B part. Lambda m is equal to kappa into 1000 by C. 4 into 10 to the power minus 5 multiplied by 1000 divided by 0.001. So you can find out the lambda m. And final alpha is equal to lambda m upon lambda 0 m. That is 0.103. So Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी? C alpha square divided by 1 minus alpha. Put all this value, simplify करो, multiplication करो, you get your answer. So this is all about your numerical number 18. अब जो remaining numerical है 19, 20, 21, 22 ये सारे के सारे जो है वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं. Do not use calculator, do not use any another reference. डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिए, log and anti-log खुद से देखिए and solve this all the numerical 2 times. So this is all about from my side. Thank you.